here we are going to deal with a series solution about a regular singular point, that is the Frobenius method, right? And it is a bit calculating method. Okay, first of all we will find the integral roots. So before going to solve the question, we will see the general method for this. Okay, थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेटिंग है, लेकिन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ये आपके, फॉर एग्जांपल इट इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड let x naught be a regular singular point of the equation. Okay, regular singular point. इसका मतलब हो गया कि a naught x naught equals to 0. Okay, since x naught is a regular singular point, तो हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. Okay, right? Where p1x and q1x are given here, and which can be written is like x minus x naught square y double x plus x minus x naught p1x y x plus q1x y. Okay, and where p1x and q1x are given above. तो गाइस थोड़ा सा मतलब जनरल मेथड थोड़ा मुश्किल होता है समझना इसका, लेकिन क्वेश्चन जब आप करेंगे तो क्वेश्चन से वो चीज क्लियर हो जाती है. हाँ, काम कैसे करेंगे इसको, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा. मैं चाह रहा हूँ कि सीधा क्वेश्चन हम पकड़े और क्वेश्चन के बेस पे हम काम करें. ठीक है, तो क्वेश्चन ही करते हैं सीधा. Find two linearly independent solution of the equation find two linearly independent solutions of the equation to x square y double x plus x y x, then minus x square plus 1 y equals to 0 using the Frobenius method. Using the Frobenius method. And determine the radius of convergence of each of the series. इसको छोड़ो, Frobenius method से इसको solve करना है. Now the solution is
And now if we talk about the regular singular point, okay, so we know that 2x, first we write the differential equation. The given differential equation is 2x square y double x plus x y x minus x square plus 1 y equals to 0. And this implies that a naught x equals to 2x square. And to find the regular singular point, we put it equals to 0. Okay. So this implies that x equals to 0 is a regular singular point. Is a regular singular point, right? X equals to 0 is a regular singular point. So now, since x equals to 0 is a regular singular point, then we go for the solution. Okay. Let the solution be written as let the solution be written as y of x equals to summation m runs from 0 to infinity pm x to the power m plus r. Cm x to the power m plus r. Now differentiating. Now differentiating, we obtain y dx x equals to okay, y dx x equals to, now इस ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, समेशन m इक्वल्स टू 0 टू m runs 0 to infinity और m plus r cm x to the power m plus r minus 1, और फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में दो बार डेरिवेटिव इन्वॉल्व है. okay? हम क्या करेंगे, समेशन m runs from 0 to infinity m plus r और m plus r minus 1, okay, cm x to the power m plus r minus 1, okay, no minus 2. Now substituting in the differential equation, the given differential equation and simplifying, and simplifying
we obtain 2 times, भाई ये जो y डेक्स आपने निकाला और y डबल डेक्स जो निकाला है और y एक्स, 3 इक्वेशन है आपके पास। एक तो आपने y एक्स को सोल्यूशन मान लिया, मान लिया कि इसका जनरल सोल्यूशन y एक्स है, लेट द सोल्यूशन बी दिस, ओके। और ये सोल्यूशन ही आपने क्यों माना, ये बता दूं, जनरल सोल्यूशन आपका जो होता है cm x माइनस एक्स नॉट टू द पावर m माइनस m प्लस r होता है, ठीक है। जनरल सोल्यूशन जो आप मान के चलते हैं वो आप मान के चलते हैं cm x माइनस एक्स नॉट टू द पावर m प्लस r। एक्स नॉट जो होता है वो आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट जो है आपका वो 0 है, तो आप जनरल सोल्यूशन ये मान के चले एक्स नॉट की वैल्यू आपने 0 कर दी। उसके बाद आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, और वाई एक्स, वाई डेक्स एक्स, वाई डबल डेक्स एक्स, ये तीनों आपने अबव डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। तो उससे आपके पास जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन बना, summation m runs from 0 to infinity m plus r minus 1 x to the power m plus r plus summation m runs from 0 to infinity m plus r x to the power m plus r and minus summation m runs from 0 to infinity cm x to the power m plus r plus 2 and minus cm x to the power m plus r equals to 0। सर ये -2 होगा ना, m प्लस r -2, m प्लस r माइनस 2 कहां पर, जो अभी जो लिखा है सर, cm x m प्लस r -2 होगा ना। नहीं नहीं पावर में देखो, मेरी बात सुनो, मैं समझ गया आप कहाँ कंफ्यूज हुए, आप इसकी बात कर रहे हैं एक्चुअली, है ना, राइट। देखिए आपने डिफरेंशियल इक्वेशन देखी क्या है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी है और एक्स भी है, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई होके ये पावर बैलेंस हो जाएंगे। देखिए जब वाई डबल डेक्स की वैल्यू रखेंगे m माइनस 2, राइट, पावर इसमें क्या है, वाई डबल डेक्स में m एक्स की पावर क्या है m प्लस r माइनस 2, लेकिन उसके मल्टीप्लाई में क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये इस वजह से m प्लस r हो जाएगी ये पावर, राइट। तो जब आपने पहला जो इक्वेशन लिखा ना 2 टाइम्स m प्लस आर m माइनस 1 m प्लस आर माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर m प्लस आर, यहाँ पर -2 था, लेकिन वो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई डिफरेंशियल इक्वेशन में शुरू में हो रखी है, तो उसकी वजह से ये m प्लस आर हो गया, राइट। उसके बाद समझ में आया ना आपको क्या किया इसमें, एक बारी फिर से बता दीजिए सर, नहीं आया। देखो मैं बताता हूँ, आपने एक जनरल सोल्यूशन मान लिया y of x equals to m runs from 0 to infinity cm x to the power m plus r, इसमें कोई दिक्कत, और यही जनरल सोल्यूशन क्यों माना, क्योंकि पावर सीरीज का जो हम सोल्यूशन लेके चलते हैं अभी, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हम जनरल सोल्यूशन जो लेके चलते हैं m runs from 0 to infinity cm x माइनस x नॉट टू द पावर m प्लस टू द पावर m प्लस r, है ना, ये हम जनरल सोल्यूशन लेके चलते हैं, राइट, ठीक है, क्लियर है ना भाई, ये जनरल सोल्यूशन लेके चल रहे हैं। उसके बाद
हमने क्या करा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, इसी सॉल्यूशन का y डेक्स x किया, और फिर इसका y डबल डेक्स किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इसको ऊपर वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको रख के इसको सेटिस्फाई कराना है, क्योंकि इसमें y डबल डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, y डेक्स भी इन्वॉल्व है, सिंगल डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। तो हमने बहुत छोटा सा काम कर लिया यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव निकाल दिया y डेक्स और y डबल डेक्स। जब इसको उठाकर हमने ऊपर इस इक्वेशन में पुट किया, 2x स्क्वायर वाई डबल डेक्स प्लस एक्स वाई डेक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1y, राइट? बस में आ रही ना? अब देखो गौर से, जब आपने x y डबल डेक्स इसके अंदर पुट किया, y डबल डेक्स क्या था? समेशन m रेंज फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी m प्लस r माइनस 1 cm x टू द पावर m प्लस r माइनस 2। तो यहाँ पे क्या था? एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है। क्या मैं इस स्टेप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके लिख दूं पहले से? देखो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे 2x स्क्वायर आप बाहर कर लो, और यहाँ पे आप कर लें ऐसे नहीं, मैं समझ गया आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। मैं एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा मेरे को ना, चलिए मैं बढ़ा देता हूँ। हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, वीडियो देखना किसका फोन आ रहा है। हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 2x स्क्वायर वाई डबल डेक्स और प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई डेक्स, राइट? और देखो बहुत छोटा सा काम है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 राइट, है ना? अब आपने क्या करा, यहाँ पे 2x स्क्वायर को तो ऐसे रखा, y डबल डेक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी? समेशन m रन्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और सी m प्लस r और m प्लस r माइनस 1 और नो x टू द पावर m प्लस r माइनस 2, राइट? ये y डेक्स की वैल्यू, y डबल डेक्स की। उसके बाद हमने क्या किया? प्लस x, y डेक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? समेशन m रन्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और m प्लस r, राइट? और यहाँ पर अच्छा cm हमने कहीं छोड़ दिया, यहाँ पे cm भी है भाई ना, और यहाँ पे cm x टू द पावर m प्लस r माइनस 1, राइट, है ना? एंड देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, y आपने माना समेशन m रन्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी cm x टू द पावर m प्लस r। अब बताओ ये स्टेप क्लियर है? यस। बस अब इसमें क्या करना है आपको, इस स्टेप में एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये लिखा गया 2 टाइम्स समेशन m रन्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और m प्लस r, बल्कि cm आप शुरू में लिख लें, और m प्लस r माइनस 1, और यहाँ पे ना x की पावर 2 है यार, यहाँ पे x की पावर m प्लस r माइनस 2 है, तो क्या इसको x की पावर m प्लस r लिख सकता हूँ मैं? यस और नो? यस। तो इसी तरीके से हमने m रन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और यहाँ पे m प्लस r, और इसको लिख सकते हैं, बल्कि cm आप शुरू में ले लें, और x टू द पावर m प्लस r लिख सकते हैं इसको, राइट? राइट। माइनस में आप एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, समेशन m रन्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी cm x टू द पावर m प्लस r प्लस 2, राइट? And then minus summation m runs from 0 to infinity cm x to the power m plus r equals to 0, right? ये छोटा सा काम किया बस, वैसे कैलकुलेटिंग पार्ट और कुछ नहीं है ना? Where r is any real number, क्लियर है ना? यस सर। Okay. Now अब आगे के लिए हम क्या करेंगे, the lowest
degree term in the term containing the lowest degree term. Is the term containing x to the power r. The term containing x to the power r. Now stating the coefficient x to the power r equals to 0. Okay, ये दोनों बराबर में क्या आपके पास 0 है, तो जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है आपका x to the power r, ठीक, सबसे छोटा जो डिग्री टर्म होगा इसमें वो x to the power r होगा, क्योंकि जब आप m को 0 से रन कराएंगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, m इक्वल्स टू 0 तो x की पावर r मिलेगा, फिर m इक्वल्स टू 1 तो x की पावर r प्लस 1 मिलेगा, है ना। तो इसी तरीके से जो सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म जो बनेगा आपका वो x टू द पावर r बनेगा। तो अगर आप x टू द पावर r के कोफिशिएंट को इक्वल्स टू 0 पुट करें तो वहां से आपके इंडिकल रूट्स निकल आएंगे। कैसे करना है उसको, तो हमें क्या करना है, जैसे कि m इक्वल्स टू 0 के लिए अगर हम बात करें तो ये हो गया c0 और m की वैल्यू 0, ये हो गया r और ये हो गया r माइनस 1 और ये हो गया x टू द पावर r, है, बल्कि से कोफिशिएंट देखते हैं भाई, अगर m की वैल्यू 0 है तो x की पावर r ये हो गया आपका, ठीक, देन प्लस इसमें भी m की वैल्यू 0 तो c0 r, ठीक है, और सिमिलरली इसमें भी, अच्छा इसमें भी m की वैल्यू 0 करेंगे तो इसमें x की पावर r का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा, m r प्लस 2 का कोफिशिएंट मिलेगा, है ना, तो इसमें करेंगे आप देन माइनस c नॉट इक्वल्स टू 0। ये चीज देखो समझ में आई है नहीं आपको, जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है x टू द पावर r उसके उनके कोफिशिएंट को इक्वल्स टू 0 पुट किया, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे, आप पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। आगे बढ़ू, Yes, sir. ओके, तो आपने क्या करना है, सी नोट कॉमन ले लें यहाँ से, जब आपने सी नोट कॉमन ले ली तो आपको क्या मिला, आर स्क्वायर माइनस आर और प्लस आर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहां से आपको इक्वेशन मिली सी नोट आर स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। हम एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ये हमने कोफिशिएंट से निकाले, है ना, तो 2, अच्छा यहाँ पे हमारा 2 टाइम्स छूट गया, ओके, शुरू में अगर आपने गौर किया हुआ यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स छूट गया हमारा, तो यहाँ पे जब आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 की और मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, है ना, तो ये 2 और 2, तब जाके यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आएगा, ये आएगा माइनस का r और माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, ओके, माइनस का r माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या है कि सी नोट तो आपका नॉन जीरो है, तो आपका जीरो कौन होगा, आर स्क्वायर माइनस का r माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो r की 2 वैल्यू देगा आपको, ये आता है ना मिडिल टर्म स्प्लिट से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, r की वैल्यू एक तो 1 देगा और दूसरी वैल्यू मिलेगी माइनस हाफ, ठीक, तो ये आपके इंडिकल रूट्स कहलाते हैं, है ना, r इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1 आर द इंडिकल रूट्स, द इंडिकल रूट्स आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर यहाँ पे इंडिकल रूट्स, इंडिकल रूट्स, ठीक है, तो ये आप निकाल लेंगे इसको पहली फुर्सत में, है ना, इंडिकल रूट्स निकाल लेंगे, जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसे आप इक्वल टू
जीरो पुट करके, उसके बाद जो x टू द पावर r+1 का जो कोफिशिएंट है ना, तो ये वो आपको क्या 2r देगा? स्क्वायर से r स्क्वायर कैसे हुआ? कहाँ पे? ये यहाँ पर। हाँ 2r स्क्वायर माइनस 2r, और ये 2 छूट गया यहाँ पे, ये छूट गया तो है ना, प्लस r आएगा। ओके माइनस r, ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है ना, वो छूट गया था। तो ये दो इंडिकल रूट्स हैं, है ना। अब आपने इसी तरीके से C1 कोफिशिएंट के बारे में पता करना है, क्योंकि आपको ना मेन जो टारगेट है आपका वो C0, C1, C2, C3, C4, ये जो कोफिशिएंट है आपके सॉल्यूशन में, ये आपको पता लगाने कि ये कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। अब इसके बाद आप x की पावर r+1 के कोफिशिएंट को जीरो करेंगे इन दिस अबव इक्वेशन, ठीक है। तो जब आप उसे जीरो करने जाएंगे ना, तो उसमें आपकी दो पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। जब आप उसकी जीरो करेंगे तो C1 2 टाइम्स 1 प्लस r, ये मैं भी बताता हूँ कैसे निकल रहा है, देन प्लस r, देन प्लस 1 प्लस r, एंड देन -1 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करा कि x टू द पावर r+1 का जो कोएफिशिएंट है उसको आपने इक्वल्स टू 0 करा। अब x टू द पावर r+1 का कोएफिशिएंट आपको ये जो पहली टर्म है m की वैल्यू 1 रखने पे मिलेगा, ठीक है। तो जब आप m की वैल्यू 1 रखेंगे पहली टर्म में, यहाँ पे देखो m की वैल्यू 1 रखो आप इसमें, तो आपको क्या मिला C1 और r+1, और 1 से m की वैल्यू 1 रखने पे 1 से 1 कट गया तो r बच गया, तो C1 m+1 इंटू m, ठीक है। तो पहली टर्म से आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स 1 प्लस r इंटू r, राइट। m की वैल्यू 1 रखने पे क्लियर है ना। देखो पहली टर्म से अगर m की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो C1 1 प्लस r और इंटू r, है ना। तो इसी तरीके से दूसरी टर्म में m की वैल्यू 1 रखेंगे, तो इस तरीके से आपने x की पावर m+1 के कोएफिशिएंट को इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। तो यहां से आपको क्या रिलेशन मिला, दिस इंप्लाइज दैट C1, यहां से आपको सोल्व करेंगे इसको 2 प्लस, ऑलरेडी you can write it 2r plus r square, then plus 1, then plus r minus 1, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बचा क्या, दिस इंप्लाइज दैट C1 और r स्क्वायर देन प्लस का 3r, प्लस का 3r दैट इज इक्वल्स टू 0। देखिए हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो अगर हम इंडिकल रूट के रिस्पेक्ट में बात करें, नाउ फॉर r इक्वल्स टू 1 एंड माइनस हाफ, r इक्वल्स टू 1 एंड माइनस हाफ, तो आपका जो C1 होगा वो 0 होगा, ठीक है। क्योंकि r इक्वल्स टू 1 के लिए ये एक नॉन जीरो नंबर है, और C1 और नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 किसको होना पड़ेगा, C1 को। सिमिलरली माइनस हाफ के लिए ये एक नॉन जीरो नंबर है, और ये जब नॉन जीरो नंबर है तो C1 इंटू नॉन जीरो नंबर इक्वल्स टू 0, यानी कि C1 इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने C1 ही आपने 0 निकाल लिया। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, x टू द पावर जो m+2 है उसके लिए काम करेंगे आप, ठीक है। अब आप ये अपने 2r स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, सेकंड 2r प्लस 2r स्क्वायर, है ना, ठीक है। हाँ। तो इससे C1 आपका 0 आ गया। C1 0 क्यों आया, क्योंकि r इक्वल्स टू 1 इंडिकल रूट्स के लिए r इक्वल्स टू 1 और माइनस हाफ के लिए ये नॉन जीरो होगा। 2r स्क्वायर प्लस 3r ये जीरो वैल्यू नहीं होगी कभी भी इन दोनों वैल्यू के लिए, तो इसका मतलब C1 0 होगा इन दोनों वैल्यू के लिए, है ना। इसके बाद आपने क्या करा, आपने अपनी डिफरेंशियल जो सॉल्यूशन था उसे रीराइट किया, उसे करा समेशन m रन्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और नो 2 टाइम्स m प्लस r m
plus r minus 1, okay, then plus m plus r और minus 1, ठीक है, और cm आपने बाहर ले लिया x to the power m plus r, then minus summation m runs from 0 to infinity और cm x to the power m plus r plus 2, m plus r plus 2 equals to 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो एक का कोफिशिएंट तो है x की पावर m प्लस r, एक का है x की पावर m प्लस r प्लस 2, तो यहाँ पे आप क्या करें, इसको सेटिंग कर ले, सेटिंग यहाँ पे सेटिंग m प्लस 2 इक्वल्स टू 2t, ठीक, तो आपके लिए एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, समेशन m रन्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 2 times m plus r m plus r minus 1, ठीक है, और then plus m plus r then minus 1 और ये cm x to the power m plus r, ठीक, and then minus m runs from 0 to infinity cm x to the power m plus t, बल्कि इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आप करेंगे, क्योंकि आपने क्या रखा m प्लस 2 इक्वल्स टू t, है ना, तो यहाँ से m को रिप्लेस कर देंगे t माइनस 2, तो t इक्वल्स टू 2 से शुरू होगा एक तरीके से, इक्वल्स टू 0, और फिर t को आपने क्या कर देना, फिर t को आपने r रिप्लेस कर देना, है ना, तो एक तरीके से ये क्या बन जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट, सर ये पावर m प्लस टी कैसे है, जब m प्लस 2t है तो t प्लस r होगा ना x की पावर, x की प्लस कहाँ पे, जो आपने ये लास्ट इक्वेशन जो लिखी है माइनस के जी बाद जी, से t2 से लेके हाँ इंफिनिटी तक cm x m प्लस t, हाँ, तो ओके ये ओके ओके t प्लस हाँ, r होगा। ओके 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 ओके, ये जो है t प्लस r होगा, ठीक है, राइट, अब इसको हम क्या करते हैं भाई, और दिस implies that m runs from 2 to infinity और m plus r 2m plus 2r 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 2m plus 2r then minus 1 and then minus 1, cm and minus cm minus 2 x to the power m plus r equals to 0। देखो अब ऊपर वाली जो इक्वेशन है, क्या आप उसको रीराइट करके इसे लिख सकते हैं, ये जो है आपके पास ये t माइनस 2 होगा, क्या आप उसको इसे लिख सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को, देखो इसमें क्या क्या है कि आपने m प्लस 2 को t सेट कर लिया, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, और क्योंकि t जो एक डमी वेरिएबल है, तो डमी वेरिएबल होने के चलते आप इसको फिर t को फिर m से रिप्लेस कर सकते हैं वापस में, ठीक है, जब आप इसको वापस से m से रिप्लेस करेंगे तो आपको x टू द पावर m प्लस r दिखेगा दोनों ही समेशन में, तो x टू द पावर m प्लस r आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास रिजल्टेंट में ये बच गया,
है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप 0 सेट कर देंगे। 2 तो 2 बाहर कॉमन था ना, हाँ 2 को बाहर कॉमन था। तो फिर 2 पूरे उससे मल्टीप्लाई होगा ना, 2m + 2r - 2। नहीं, उसमें एक टर्म और है, अगर आप ऊपर देखें तो ये देखो यहाँ पे, ये एक्चुअली एक तरीके से m+r, ये वाला m+r भी तो एडजस्ट होगा ना, इसको सोल्व करो, है ना। m+r कॉमन लो ना इन दोनों में से, हाँ हाँ है ना। m+r आपने कॉमन लिया तो 2m + हाँ 2r - 2, ठीक हाँ, है, देन -2 वगैरह। +1, ठीक है। +1 कहाँ से आएगा सर? देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो m+r आपने कॉमन ले लिया, तो 2m, तुम ये कहना चाह रहे 2m 2r - 2 +1, मैं ये कहना चाह रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट, ओके ओके, समझ गया। ठीक है, अब आपने क्या करा, अब दिस implies that m+r और 2m + 2r - 1 and then -1 cm and -cm - 2 = 0। x to the power m + r का जो कोएफिशिएंट है आपने 0 के बराबर पुट कर दिया, and this implies that cm is equals to cm - 2 then divided by how much, that is m + r, m + r 2m + 2r - 1 and then -1, okay, here m is greater than equals to 2। तो यहाँ पे cm और cm - 2 में ये रिलेशन यहाँ पे निकल के आ गया। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जैसे c1 की बात करता हूँ, मेरे पास c1 जो हमने ऊपर निकाला था वो 0 था, ठीक है। तो जब मैं c3 निकालने जाऊंगा, c3 क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ c1 होगा नहीं होगा, यस और नो। यस। जब आपका c1 0 है तो c3 भी क्या होगा, बताइए। आपका c1 0 हमने ऊपर निकाला था, तो c3 क्या होगा, 0 0। सिमिलरली c5 क्या होगा, 0। क्योंकि c5 c3 की टर्म में निकलेगा। तो सारे ओड इंडेक्स्ड कोएफिशिएंट जो होंगे वो सारे 0 होंगे, राइट, है ना, होंगे नहीं होंगे, ओड इंडेक्स टर्म सारे 0 होंगे, ओके। दिस इंप्लाइज दैट c1 c3 c5 and all are equals to 0। अब बात करते हैं इवन इंडेक्स टर्म की। तो इवन इंडेक्स टर्म के लिए जब आप बात करेंगे यहाँ पे c2, जैसे आप c2 निकालने जाएंगे, c2 n के m की वैल्यू आपने 2 रख दी ऊपर, ठीक है। तो ऊपर आपको क्या मिल गया यहाँ पे, c0 डिवाइडेड बाई r, और m की वैल्यू आपने 2 रख दी यहाँ पे 4, यानी कि यहाँ पे प्लस का 3, 2r + 3, 2r + 3, है ना, एंड देन -1, राइट। और c0 की वैल्यू आपके पास है, आपने ऊपर कैलकुलेट कर रखी है, ठीक। इसी तरीके से c2 तो आपका निकल गया यहाँ पे c0 अपॉन, बल्कि यहाँ पे ना आप r की वैल्यू भी, क्योंकि देखो ये आप ये r की वैल्यू आपके पास दो हैं, एक तो 1 है इंडिकल रूट्स, और यहाँ एक है आपके पास -1/2, ठीक। तो इसी तरीके से आपके पास जो r = 1 और r = -1/2, इन दोनों के लिए अलग अलग रिलेशंस मिलेंगे आपके पास, है ना। तो अगर मैं बात करूं r = 1 के लिए, तो r = 1 के लिए मुझे मिला c0 डिवाइडेड बाय, r की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 रख दी, तो 5 r की वैल्यू 1 रख दी अगर, तो 2
सी नोट बाई, इसमें तो 14 दिखा रहा है, हमारा गड़बड़ कैसे हुआ ना। गाइस एक छोटा सा देखिए यहाँ पे, एक गड़बड़ कर गया यहाँ पे, हमारे पास एक्सप्रेशन ये आया था, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास आया था, राइट। तो यहाँ पे हम m की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो m की वैल्यू 2 रखने पे हमारे पास जो नीचे में मिलेगा वो मिलेगा 2 प्लस r, यहाँ मिलेगा 2 प्लस r, ओके, और 4 प्लस 2r माइनस 1 देन माइनस 1, राइट। और r की वैल्यू अगर हम इसमें 1 रखते हैं तो ये हमारे पास मिलता है सी नोट डिवाइडेड बाई 2 4, और यहाँ पे हो गया 7, 2 दूनी 4, ओके 7, तो 14, हाँ, तो C2 बराबर हो गया सी नोट बाई 14। तो ऐसे जब आप C2 निकाल चुके, अब आप C3 तो आपका 0 हो गया, C4 जब आप निकालेंगे, C4 बराबर आपका निकलेगा C2, M की वैल्यू 4 रख देंगे, अब इसमें M की वैल्यू 4 रख देंगे, तो M की वैल्यू 4 रखने पे आपको क्या मिलेगा, 4 प्लस R और 8 प्लस 2R माइनस 1 देन माइनस 1, राइट। अब इसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R की वैल्यू आप क्या रखेंगे इसमें, 1 8 प्लस 2r, प्लस 2R, 8 प्लस 2r, 8 प्लस 2R, राइट, 8 प्लस 2R, ठीक है। जब R की वैल्यू आप इसमें 1 रखेंगे तो इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में C2 बराबर आपके पास निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा C2 बाई 44, और R इक्वल टू 1 के लिए भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। R इक्वल टू माइनस आपके लिए भी सेम कैलकुलेट करेंगे, और C2 की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, C2 अपॉन 14, तो जब आप इसको इन टर्म ऑफ C नोट निकालेंगे तो ये आपके पास निकल के आएगा 650, है ना। तो इसी तरीके से देखो, अब R इक्वल टू 1 के लिए आपके पास में C1 निकल आया, C नोट निकल आया, है ना। C नोट कोई भी नॉन जीरो नंबर है, C नोट आपके पास कोई भी नंबर रहेगा, C1 0 होगा, C2 आपके पास क्या निकल आया, C नोट बाई 14 निकल आया, C3 आपका 0 हो गया, C4 आपके लिए क्या निकल आया, C नोट बाई 616 निकल आया, C5 0 होगा, इसी तरीके से C6 आप निकाल लेंगे, राइट। लेकिन ये जो निकलेगा R इक्वल टू 1 के लिए निकलेगा, फिर R इक्वल टू माइनस हाफ के लिए आप सिमिलरली आगे बढ़ेंगे, है ना। जब आप R इक्वल टू माइनस हाफ के लिए इसी डायरेक्शन में आप जाएंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि फॉर R इक्वल टू माइनस हाफ, है ना, तो उसके लिए आप C2 आपका जो होगा वो C2 होगा आपका C नोट बाई 2, है ना। C4 जो होगा आपका वो C2 बाई 20 या फिर C नोट बाई 40, राइट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको R इक्वल टू 1 और R इक्वल टू माइनस हाफ के लिए दो सीरीज सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ पे, जो आप ऊपर वाली इक्वेशन में आप इसको पुट करेंगे, क्या मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा y1x 4 R इक्वल टू 1, वो आपको मिलेगा C नोट x 1 प्लस x स्क्वायर बाई 14, ठीक है, एंड देन प्लस x टू द पावर 4 बाई 616, देन प्लस डॉट डॉट डॉट। एक तो सोल्यूशन आपको ये मिल गया, है ना। दूसरा सोल्यूशन आपको मिलेगा y2x बराबर, वो R इक्वल टू आपके लिए मिलेगा, R इक्वल टू माइनस आपके लिए, और वो मिलेगा C नोट x टू द पावर माइनस हाफ, ठीक, 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 एंड देन प्लस x टू द पावर 4 बाई 40 एंड देन प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपका जो कंबाइंड सॉल्यूशन जो होगा
वो होगा दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू a टाइम्स y1x एंड देन प्लस b टाइम y2x। इन दोनों को जोड़ देंगे आप। बात समझ में आई है नहीं बताओ मेरे को। ये आपका कंबाइंड सॉल्यूशन होगा।